जय हिंद प्यारे बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, सिंस पावर ऑफ लेंस P equal to 1 upon F when F is measured in meter and equal to 100 upon F when F is measured in centimeter. If we measure the focal length of a lens in meter, then its reciprocal is called as power of lens. If we measure the focal length of a lens in meter, then its reciprocal is called as power of length. And if you are measuring the focal length in centimeter, then power of lens will be 100 upon centimeter. If we measure the focal length of a lens in meter, then its reciprocal is called as power of lens. Unit of power of lens is diopter. What is one diopter? किसी भी लेंस की पावर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज diopter. What is one diopter? Since P is equal to 1 upon F, if F equal to 1 meter, then its power is 1 upon 1 is equal to 1 diopter. If focal length of a lens is 1 meter, then its power is called as 1 diopter. Power of lens means ability of diverging and converging. Converging and diverging ability of the lens is measured by this physical quantity. It is power of lens. Power of lens, if focal length of a lens is 1 meter, then its power is called as 1 diopter. तो बच्चों, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर को हम लोग 1 diopter बोलते हैं. पावर ऑफ लेंस is the measure of converging and diverging ability of the lens. And power of lens, suppose if focal length of a lens is 20 centimeter, then find its power. If focal length of a lens is plus 20 centimeter, then find its power. इसका solution है बेटा. Since P equal to 1 upon F when F is in meter, is equal to 100 upon F when F is in centimeter, then P is equal to 1 upon F means plus 20. और सेंटीमीटर में अगर इसको मेजर किए हैं तो 100 लिखिए, and you will get the power of lens is plus 5 diopter. And in the series of this question, if focal length of a lens is minus 20 centimeter, then find its power. तो minus 20 centimeter अगर focal length है बेटा, इसकी पावर कितनी होगी? minus 5 plus 20 centimeter. तो ये नेगेटिव पावर मीन्स डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस जितने भी होते हैं
उनकी पावर नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस जितने हैं उनकी पावर पॉजिटिव होती है। बच्चों सपोज करो कि देयर आर टू लेंसेज, ईयर 1 एंड ईयर 2, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, P1 इक्वल टू +3 डायोप्टर एंड इट इज +2 डायोप्टर। अगर इसकी पावर 3 डायोप्टर है, इसकी पावर 2 डायोप्टर है, इट मींस P1 मोर देन P2। इट मींस व्हाट? इट इज मोर कन्वर्जिंग देन इट, इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है, ये अपने ऊपर इंसिडेंट करने वाली रेट ज्यादा कन्वर्ट्स करेंगे। बच्चों इफ यू आर हैविंग इसकी पावर -3 डायोप्टर, इसकी पावर -2 डायोप्टर, इट मीन बोथ द लेंसेज आर डाइवर्जिंग कॉन्केव टाइप, दोनों लेंस कॉन्केव, और P1 is more negative than P2, it means it is more diverging, it have more diverging ability, P1 की diverging ability ज़्यादा है in comparison to P2। इस तरह से बेटा किसी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पावर ऑफ लेंस का यूज करते हैं, और उसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। प्यारे बच्चों जितने भी चश्मे बनते हैं सबके लेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी देखने के लिए नेगेटिव पावर का चश्मा है, पॉजिटिव पावर का चश्मा पूछते हैं, और हम लोग धूप वाला चश्मा या 0 पावर का भी चश्मा यूज करते हैं। पॉजिटिव पावर मीन्स कन्वर्जिंग टाइप और नेगेटिव पावर मीन्स डाइवर्जिंग टाइप। 0 पावर मीन्स its focal length is infinite, it will neither converts nor diverts, and इसे हम लोग कहते हैं 0 पावर का चश्मा। In the series of this linear magnification, जनरली इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू इमेज लेंथ upon object length, image length upon object length। Linear magnification of an optical instrument can be defined as the ratio of image length to the object length। The ratio of image length and object length is called as linear magnification। Linear magnification बेटा अगर आप मेजर करना चाहते हैं, सपोज करिए this is a convex lens and ये इसका फोकस है, इसका 2f पॉइंट है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पल्लर रह जाएगी और फोकस हो जाएगा, और एक ऑप्टिकल सर्फेस जाएगी, ली गई ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, इमेज का नाम ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का नाम ओ है, इमेज का नाम आई है। इस सेंटर में यहाँ से आते डिस्टेंस को माइनस की, यहाँ से डिस्टेंस को प्लस की। From figure triangle CAB is similar to triangle CA dash B dash। CAB is similar to CA dash B dash। Then what you will get? Perpendicular upon perpendicular, A dash B dash upon AB, CA dash upon CA। So A dash B dash means I upon O is equal to V upon। जानते हो बेटा रियल ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, रियल ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। इमेज भी उसी डायरेक्शन होगी तो भी पॉजिटिव होगी, नहीं तो नेगेटिव, तो भी पॉजिटिव है।
ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा पॉजिटिव भी है, ऑब्जेक्ट इमेज भी अगर उसी डायरेक्शन में तो भी पॉजिटिव, नहीं तो उल्टी है तो नेगेटिव। और वी और यू की साइन कन्वेक्शन दोनों तरफ माइनस कैंसिल हुआ, आई अपॉन ओ इसको बी अपॉन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m equal to I upon O is equal to B upon it is called a linear magnification equation. Linear magnification of an optical instrument can be defined as the ratio of image length to the object length. The ratio of these two is called as linear magnification. Suppose करो बेटा किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो या दो से ज्यादा लेंस है, if there are two or more than two lenses in the optical instrument, और पहले की मैग्नीफाइंग पावर m1 दूसरे की m2 तीसरे की m3, then resultant magnifying power will be equal to m1 multiply m2 multiply m3. अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक लेंस के बजाय कई लेंसेज हैं, हो सकता है आपस में टच कर रहे हो या दूर दूर हो, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करता है। सपोज करो पहले लेंस की मैग्नीफाइंग पावर 4 दूसरे की 3, then resultant magnifying power equal to what? It is linear magnification and area magnification means area of the image, area of image, image area upon object area. Volume magnification, image volume upon object volume. बेटा अगर आपको एरिया मैग्निफिकेशन मालूम है, linear magnification means image length upon object, area magnification means image area upon object area, volume magnification means image volume upon object. अगर आपको एरिया मैग्निफिकेशन मालूम है बेटा, लिनियर मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो रूट ऑफ एरिया मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड लिनियर मैग्निफिकेशन, या लिनियर मैग्निफिकेशन वॉल्यूम मैग्निफिकेशन मालूम है उसका क्यूब रूट ले लीजिए, देन इट इज कॉल्ड एज लिनियर मैग्निफिकेशन। इसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया मैग्निफिकेशन, इसका क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम मैग्निफिकेशन इन जनरल। तो ये मैग्निफिकेशन मींस इमेज और ऑब्जेक्ट का लेंथ का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, एरिया का रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। द लिनियर मैग्निफिकेशन जनरली इट इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट। तो हमारे बच्चों को समझ आया? थैंक यू बच्चों।